السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان گاڑیوں کے بارے میں، ان جہازوں کے بارے میں، یہ جتنی بھی وہیکلز ہیں ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گاڑیوں کے بارے میں، جہازوں کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا یا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت میں بے شک ذکر کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بوجھوں کو اور بھاری سامان کو اٹھاتے تھے دوسرے شہروں کی طرف آسانی کے ساتھ، لم تکونوا بالغیہ، آسانی کے ساتھ تم ان شہروں کو نہیں پہنچا سکتے تھے، الا بشق الانفس، مگر اپنی جانوں کو تکلیفیں دینے کے ساتھ، اپنے جانوں کو مصیبت میں، پریشانی میں ڈالنے کے ساتھ اور بڑے ٹائم لگانے کے ساتھ، اور آپ لوگ اٹھاتے تھے اور پہنچاتے تھے۔ لیکن ان ربکم لرؤوف رحیم، تمہارا جو رب ہے وہ بہت ہی شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا اور تمہارے ساتھ نرمی کرنے والا اور ہمدردی کرنے والا اور تمہارا خیر خواہ ہے۔ ان الفاظ کا یہی ترجمہ کروں گا، ان ربکم لرؤوف، رؤوف کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا اور نرمی برتنے والا، محبت کرنے والا اور خیر خواہی دکھانے والا، اور رحیم کا بھی یہی معنی ہے کہ رحم دل، مہربان اور بہت ہی زیادہ تمہارا خیر خواہ اور نرمی برتنے والا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب تمہارا رب تمہارا جو ہے نا تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ چیزیں اللہ نے بنائی کہ گھوڑے، کھچر اور اس کے علاوہ گدھے، یہ اس کے اوپر تم سوار ہو جاتے ہو اور ان سامانوں کو اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہروں تک تم پہنچاتے ہو، گھوڑوں کے ذریعے سے، اونٹوں کے ذریعے سے، کھچروں کے ذریعے سے، دیگر جانوروں کے ذریعے سے، اور وزینہ، اور ان چیزوں میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، تمہارے لیے ان چیزوں میں خوبصورتی ہے بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں سواری بھی ہے اور سامانوں کا اٹھانا بھی ہے، اور اس میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی بھی ہے۔ اگلا جو جملہ ہے فرمایا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی ایسی چیزیں بنائے گا کہ جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ ظاہر بات ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ جہاز بھی بنیں گے اور ٹرک بھی بنیں گے، ٹرین بھی بنیں گے، گاڑیاں بھی بنیں گی، اور بھی یہ جو مشینریاں ہیں یہ بنیں گے، ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن ان کو یقین تھا، انہوں نے اس آیت کے اوپر ایمان لایا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کی یہ پیشنگوئی اور اللہ کا یہ بتایا ہوا سچ ہو کر سامنے آیا کہ جو کہ اس زمانے میں حقیقت میں یہ آیت کی سمجھ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت یہ آیت نے سمجھا دیا کہ اللہ کے جو وعدے ہیں، اللہ کا جو ارادے ہیں وہ ابھی بھی ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ تو جیسا اللہ نے یہاں خبر دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ نے خبر دی تھی کہ مزید اور چیزیں بھی بنائیں گے، تو اللہ نے جہاز بنائے، ٹرین بنائے، گاڑیاں بنائی اور دیگر چیزیں بنایا، اور بتا دیا کہ جو میں نے کہا وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو مزید اس سے آگے بھی اللہ نے بہت کچھ کہا ہے کہ مرنے کے بعد یعنی قیامت آئے گا، پولیس رات آئے گا، حشر آئے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگا۔ تو جیسے یہ بات سچ ہو کر ثابت ہو گئی ہے، تو مزید آگے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی سچ ہو کر ثابت ہوں گی، وہ بھی سچ ہو کر ثابت ہوں گی۔
تو اللہ सुब्हानहू व तआला ने मजीद जो है ना ये अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, कि हमने बनी आदम को बहुत ही इज्जत और शराफत दी है, और उस इज्जत और शराफत में से ये है कि हमने उनको यानी खुशकियों में भी और समंदर में भी हमने सवार किया है। समंदर में कश्तियों के अंदर और खुशकी में जब ये बंदा अपनी माँ के पेट में होता है तो माँ की पेट में ये सवारी करता रहता है। जब पैदा होता है तो माँ की गोद इसके लिए सवारी बनती है, थोड़ा बड़ा होता है तो बाप के कंधे इसके लिए सवारी बनते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होता है तो अब तो अल्लाह ताला ने इस सवारी के लिए, इन सामानों को उठाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सवारियाँ अता की हैं, जहाज़ हैं, ये दीगर ट्रांसपोर्ट है, और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना अल्लाह ने खूबसूरत गाड़ियाँ बनवाई हैं। तो इसके अलावा जो इंसान की करामात में से है, एहतराम में से है, अल्लाह फरमा रहा है वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने इनको पाकीज़ा चीज़ें खिलाई है। और पाकीज़ा चीज़ों में से यानी आप देखें कि गोश्त की कितनी किस्में हैं, जितने भी पाक गोश्त हैं उनको खाने का हुक्म दिया है, और जिन गोश्तों में रुतूबात हैं, नापाकियाँ हैं, और उसमें इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, उन गोश्तों से बाज आने का हुक्म दिया है। और जो सेहत के लिए मुफीद हैं उन गोश्तों को, गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त, बकरियों का गोश्त, परिंदों का गोश्त और भी दीगर किस्म के जो पाकीज़ा गोश्त हैं उनका हुक्म दिया है। और जो नापाक जानवरों के जो गंदगियां खाते हैं उनके गोश्त को खाने से मना कर दिया है। इसी तरह फरमाने वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने इनको पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ दिया है। अब आप फलों की तरफ देखें और कितने से फल हैं, कितने फल हैं, अंगूर देखो, सेब देखो, अनार देखो, नाशपाती देखो, और दीगर कितने आम देखो, फल हैं, कितनी किस्में हैं, और किस साइज के, किन जायकों के हैं। यहाँ से भी इंसान के लाडला रखने की जो है ना समझ में आ जाता है कि अल्लाह ने इंसान को कितना लाडला बनाया है। और फिर दानों की किस्में देखें, चावल के दाने हैं, मकई के दाने हैं, गन्नम के दाने हैं, दालें हैं, और कितने पानियों की किस्में देखें, चश्मों के पानी है, नहरों के पानी है, दरियाओं के पानी है, कुओं के पानी है, कितनी किस्में पानियों के इस इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। तो इसके अलावा वलहुल जवारिल मुंशआत फिल बहरि कल आलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इस समंदर के अंदर और बड़ी हुई कश्तियाँ, पौधों जितने, पहाड़ों जितने कश्तियाँ हमने बनाया। और सहाबा के ज़माने में तो इस तरह की कश्तियाँ नहीं थी, इस तरह जो है ना बड़े बड़े जो है ना समुद्री जहाज नहीं थे, लेकिन उन्होंने आंखें बंद करके ईमान लेकर आए थे, और उन्होंने जो है क्या नाम है इसको तस्लीम किया था कि हमारा रब का कलाम सच है और हक है। अब देखें कि जहाज़ें कितनी, टाइटैनिक और इसके अलावा जो आजकल जो बड़े जहाज बने हैं उसका अंदर पार्क हैं, बड़े बड़े होटल हैं, ग्राउंड हैं, कितनी मंजिलें हैं, और कितनी आसाइश का सामान वहाँ मुहैया किया गया है। और जब जहाज चल रहा हो समंदर में तो ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ जा रहा है। वलहुल जवारिल मुंशआत फिल बहरि कल आलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। तो इतने बड़े बड़े जहाज, वो इतने सारे हजारों कंटेनर उठा के लेकर आते हैं, हजारों टन जो है तेल उठा के लेकर आते हैं, एक दुनिया के किनारे से दूसरे किनारे तक लेके चले जाते हैं। तो ये सारे जितने भी नई चीजें वजूद में आई हैं, मजीद आगे और भी आ सकते हैं इस आयत के मिस्दाक के मुताबिक, इस आयत के मफहूम के मुताबिक। अभी जो हमें नहीं पता है और भी ऐसी चीजें आगे वजूद में आ सकती है, क्योंकि ये आयत तो क़यामत तक के लिए वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाएंगे ऐसी चीज़ों को
जो तुम नहीं जानते हो। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये है कि कुरान ने बता दिया और वो हुआ, और जो नहीं हुआ है मज़ीद वो अभी आगे हो जाएगा। ये कुरान की हक़ानियत की दलील है और कुरान की एजाज़ की दलील है, और जो कुछ कहता है वो हक है और सच है। तो इसके ऊपर गौर करते हुए मुसलमानों को अपने यकीन को मजबूत करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात को पहचानना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की कदर करना चाहिए और कुरान मजीद से मजीद और नई टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ना रहनुमाई हासिल करना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद और भी बहुत सारी जगहों में यानी नई टेक्नोलॉजी की तरफ यानी वो फरमा रहे हैं, एक जगह फरमा रहे हैं कि कुल्लुन फी फलकी यसबहून, हर एक चीज़ को हमने आसमान के नीचे घुमाया फिराया है। इसमें आसमान के नीचे सूरज, चांद, सितारे और भी जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी इसके अंदर आती है। उस हवाले से मैं मज़ीद इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा फलकियात के हवाले से, जो कुरान ने जिक्र किया फलकियात को। तो आज जो है ना ये काफ़ी है कि जो है ना मोहम्मद का सवाल था कि क्या अल्लाह ने गाड़ियों के बारे में जिक्र किया है, तो बेशक किया है। अल्लाह ने ये इंसान को लाडला बनाने के लिए, लाडला रखने के लिए और इसको एजाज़ इकराम देने के लिए अल्लाह ने ये सारी चीज़ें पैदा की हैं। व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, और मज़ीद भी अल्लाह ताला पैदा करेंगे जो हम भी नहीं जानते हैं और तुम भी नहीं जानते हो। जज़ाकल्लाह।